کسی کا نام لے دے گا کہ میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں، اور یہ دلیل دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اول تو اس طرح کی کوئی روایت میرے علم میں تو ہے نہیں، اور اگر رسول اللہ نے پوری امت کی طرف سے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب رسول اللہ نے اگر پوری امت کے لیے کیا ہے تو وہ ان کی شان تھی، لیکن میرے علم میں یہ روایت بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہمارے تمام فقہا کا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان سب لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ دمبا اور بکرا اور بھیڑ میں ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوگی۔ اچھا حافظ صاحب، ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے کہ والدین پر نوزائیدہ بچے کی قربانی کیا فرض ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ قربانی بچے کی طرف سے نہیں ہے، قربانی تو بلوغ کے بعد ہوتی ہے۔ وہی 15 16 سال 18 سال کے عمر کا جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، ابھی وہ اگر صرف اپنے والدین ہی کے اس میں ہیں، کفالت میں ہیں، والدین ہی ان کا خرچ اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت ان پر فرض نہیں ہے۔ یہ فرض تو اسی وقت واجب نہیں ہے، وہ تو اسی وقت، ویسے وہ نفلی حیثیت سے اگر کرنا چاہیں کر دیں، یا والد صاحب چاہیں کہ میں تو اپنے بچوں کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب نہیں۔ اچھا، خاندان میں جو مرحومین ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے قربانی کرنا فرض ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جس کا انتقال ہو گیا اس کے اوپر قربانی کا وجوب ختم ہو گیا، جس طرح ہر فرض ختم ہو گیا، نہ وہ نماز اس پر رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ حج رہا، کچھ نہیں رہا، اسی طریقے سے قربانی بھی نہیں رہی۔ اب رہا یہ کہ چونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ آپ مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں، تو آپ اگر کسی کی طرف سے کرنا چاہیں، والد کی، والدہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ کرتے ہیں یا اور کسی بزرگ کے نام سے کرتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، اور ان کا ثواب ان کو ملے گا اور آپ کو بھی بہرحال ملے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا حافظ صاحب، کیا ایسا ہے کہ عقیقہ جس کا ہوا ہو وہی قربانی کرتا ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ نہیں، مطلب عقیقہ کرنا شرط ہے؟ نہیں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیقہ اگر نہیں ہوا ہے تو وہ بہرحال ایک سنت آپ نے ادا نہیں کی، اس کا گناہ تو رہے گا، لیکن آپ اب بڑے ہو گئے تو آپ قربانی کیجئے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، وہ گناہ رہے گا اگر نہیں کیا ہے تو۔ اگر والدین نے کسی وجہ سے نہیں کیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو آپ اب کر دیجئے، اس میں کیا ہوا؟ تو جوان ہونے کے بعد بڑھاپے میں بھی کیا جا سکتا ہے، جلدی سے جلدی ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی نہ کرے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اگلا خط ہمارے پاس حافظ صاحب ہے، سمینہ صاحبہ کا، دلی سے۔ یہ لکھتی ہیں کہ تصویر والے کپڑوں کا آج کل رواج ہے، تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، تصویر والے کپڑوں کا آج کل تو ایڈورٹیزمنٹ چل رہا ہے، کپڑوں کے اوپر آگے اور پیچھے مختلف قسم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو کپڑوں پر ہی تصویریں نہیں، اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی تصویر رکھی ہے جس پر آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے تو اس سے نماز مکروہ ہوگی۔ نماز ہو تو جائے گی، اگر سطر آپ کا چھپا ہوا ہے تو نماز آپ کی ہو تو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگی، اس کا ثواب کم ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم نماز کے وقت میں وہ کپڑے تصویر والے نہ پہنے جائیں، چاہے وہ آپ کے جسم کے اوپر کسی جگہ بھی ہو، تو ایسے کپڑے نماز کے وقت میں نہ پہنے جائیں۔ آگے یہ لکھتی ہیں کہ نیت باندھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ میری جیب میں کوئی تصویر ہے، تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، اور تصویر رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصویر کا مطلب تو یہ ہے کہ بالکل ظاہر میں آپ کے کوئی چیز ایسی تصویر والی نہ ہو۔ جیب میں اگر رکھی ہے، آدمی کے نوٹ رکھے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف گردن ہی ہوتی ہے، اس میں نوٹ رکھے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایک مجبوری کی بات ہے، نہ ہوتی تو اچھا تھا، لیکن اگر ہے تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں تصویر وغیرہ لگاتے ہیں یا بچوں کے کھلونے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں کمروں میں، اور وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی بھی نماز ہو جائے گی؟ نماز تو دیکھیے ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بالکل اپنے سجدے کے سامنے یا جہاں آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے وہاں وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر بالکل ہی دیوار میں ہر جگہ آپ کی تصویریں لگی ہیں تو وہاں نماز نہ پڑھیے، مسجدہ مت کیجیے، ایک طرف ہٹ جائیے، کر لیجیے، نماز تو بہرحال ہو جائے گی، نماز میں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن مکروہ ہوگی اگر آپ نے ایسی جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔
تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جناب قادر رانا، ایم پی مظفر نگر اور رانا اسٹیل انڈیا کی طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ رانا اینگل چینلز اور DRN رانا، بس نام ہی کافی ہے۔ کوبرن سلکس، چکپیٹ، بنگلورو کی جانب سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ ای ٹی وی اردو کے سبھی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اب عید کا جشن ہوگا اور بھی خوبصورت۔ جشن عید کے ساتھ عید کے موقع پر دل سے گاد عید اسپیشل پروگرام دل سے عید مبارک صبح 9 بجے، صوفی نغموں کی سوغات، ورثہ ہیریٹیج ریوائو صبح 11 بجے، عید کے خاص پکوان بن کے تیار ہے انجیری ملائی سیوئیں، اکثر رسوئی سپہر 1 بجے، ہر طرف رحمت خوبصورت گیت اور غزلوں کا گلدستہ، گزارش شام 4:30 بجے، عید کے دن بحرین میں منعقدہ بین الاقوامی مشاعرہ اور کبھی سمیلن شام گلزار رات 10:30 بجے۔ تو عید کے دن کو بنائیے اور بھی خوبصورت ای ٹی وی اردو کے ساتھ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں لیا اگربتی ہوا پلٹ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا۔ بھائی اور بہنوں، اس وقت آپ کے سامنے پرسنل لا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر مسلم پرسنل لا کے بارے میں بھی، اور دوسرے اس ملک میں، ہمارے سیکولر ملک میں، دھرم نرپیکش دیش کے اندر جو ان کے بہت سارے مذاہب ہیں، بلکہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی خصوصیت ہے اور اس کی یہ خوبی ہے، اس کی گریما اور مہیما بھی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو کہ ساری دنیا کے مذاہب کے یہاں ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، ان کا سب کا اپنا اپنا پرسنل لا ہے، یعنی ان کا شخصی قانون کہ انہوں نے شادی کیسی کرنی چاہیے، کس عورت کو اپنی پتنی بنانا چاہیے، کس عورت کو اپنی وہ پتنی نہیں بنا سکتے۔ جیسے بہت سے لوگوں کے یہاں، بلکہ راجے مہاراجوں کے یہاں، اپنی بہن سے وہ لوگ شادی کر لیتے تھے، لیکن شریعت اسلامی جو ہے وہ بہن سے شادی کرنا حرام قرار دیتی ہے۔ یہ ہوا پرسنل لا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ بھانجی کو نکاح میں نہیں لیں گے، باپ کی بیوی ہو یعنی سوتیلی ماں ہو اس کو بھی نکاح میں نہیں لیں گے۔ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ منع ہے، وہ منع ہے۔ اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو پرسنل لا کہتے ہیں۔ آدمی مر گیا، اب اس کو دفن کرنا یہ ایک طبقے کا پرسنل لا ہے، اس کو جلا دینا یہ دوسرے طبقے کا پرسنل لا ہے۔ کوئی اپنے بھائی بہن کی یا باپ بیوی کی میت کو پانی میں بہا دے گا، کوئی جنگل میں چھوڑ دے گا، یہ اپنا اپنا پرسنل لا ہے۔ ان کے کسی کے بھی پرسنل لا کے اندر مداخلت کرنا سیکولر حکومتوں کے لیے منع ہے۔ یہ بات ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک میں، ہندوستان جیسے دیش میں شخصی قانون جو ہیں، قانون دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو حکومت جو ہے سب کے لیے بناتی ہے،
मसलन लेफ्ट से चलिए गाड़ी, आप राइट से चलाएंगे तो हुकूमत को हक है कि वो आपको पुलिस चालान करेगी और आपका जुर्म को कायम करेगी। गवर्नमेंट के जो टैक्स हैं उसको अदा करना लाजिम है, ज़रूरी है। उसके अंदर चोरी करना जो है वो एक तरह की बेईमानी है, वो कानून सबको मानना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड उसको कहते हैं कि टिकट लेकर के सफ़र कीजिए, गवर्नमेंट को टैक्स भरिए, हुकूमत के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक अमल कीजिए, गाड़ियाँ ठीक तरीके से चलाइए, जो कवानीन बनाए जाते हैं उसकी धुरी के ऊपर चलिए। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो कौमों के और मज़हबों के पर्सनल कवानीन होते हैं, उसमें समझदार हुकूमतों ने दखल नहीं देना चाहिए। ये हम शुरू से भी कहते चले जा रहे हैं। और जितने भी दूसरे हमारे शंकराचार्य और बड़े आलिम हैं और ख़ुद मुसलमानों का आलिम है वो भी, और ईसाई दुनिया के दोस्त भी, ये भी हमसे मुत्तफ़िक़ रहे। मैं कुरान मजीद का एक विद्यार्थी और तालिब इल्म हूँ, ये कहता हूँ कि कुरान ने कहा फलयहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फीह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अहले इंजील को चाहिए कि इंजील में जो अल्लाह ने तो उनको हुक्म दिया था उसके मुताबिक फ़ैसला करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजूद होते हुए कुरान उतर रहा था, उस वक्त ये आयत उतरी, फरमाया कि जाऊ का फाकुम बैनहुम बिलहक, कि तुम्हारे पास आए तो हक फैसला करो। लेकिन कैफ़ युहक्किमुका इंदहुम तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाह, ये कैसे आपके पास क्यों आते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है, तो तौरात के मुताबिक फैसला क्यों नहीं कर लेते? तो बात इसमें साफ हो गई कि तमाम कौमों के फैसला के ऊपर इस्लाम ने और मुसलमानों ने हमेशा बंदिश लगाने से परहेज की है कि जिसको जैसा उसका पर्सनल ला हो उसके मुताबिक वो करे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, और दीन जो है किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता। फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जिसका जी चाहे इस ईमान को कबूल करे, जिसका जी चाहे अगर नास्तिकवाद को भी कबूल करता तो हम क्या कर लेंगे? हम उसको अल्लाह के भरोसे छोड़ेंगे कि मर के आदमी जब अपने मालिक के सामने हाजिर होगा तो फैसला वो कर लेगा। अब हम ये कहना चाहेंगे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान में वो बातें जिसमें मतैक्य है, यानी उसमें मतभेद नहीं है, उसको कुरान ने कहा कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो। फिर ये मत देखो कि दुश्मन है या दोस्त है, अपना है या पराना है, अपना मानुस है या दूसरा, ये मत देखिए। भलाई का काम जहाँ दिखे वहाँ एक दूसरे का साथ दो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के कामों में और ज़्यादती के कामों में साथ मत दो। तो पर्सनल लॉ के बारे में मैं ये कहूँगा कि शख्सी कानून जो हैं सबके अलग अलग हैं अपनी जगह के ऊपर। अब उसमें जिनकी शरीयत है, जिनके पास आसमानी किताब है, जिनके पास अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान रखने का सिस्टम है, उनका अपना पर्सनल लॉ जो होता है उसमें विरासत है। हक़ विरासत लड़की को, माँ बाप की विरासत के अंदर बेटों को हक़ है, बेटियों को भी हक़ है। उनका अपना पर्सनल लॉ के मुताबिक विरसे की तकसीम होनी चाहिए। वसीयत का कानून है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर ये बात मान ली गई है। लेकिन बहुत से लोग इसमें ऐसी टांग अड़ाते हैं कि सबका यकसा कानून बना लो, कॉमन सिविल कोड बना लो। कॉमन सिविल कोड कैसे बनेगा? चुनांचे हम एक बहुत समझदार प्राइम मिनिस्टर के पास में जब गए और मुझे मौलाना ने हुक्म दिया था, अली मियां साहब ने, कि आप इनसे बात कीजिए। मैं लड़ाई झगड़े में और तू मैं यकीन नहीं रखता। मैं तर्क में, विद्या में और दलील में और इल्म की रोशनी के अंदर बात सुनना भी पसंद करता हूँ, वो कहना भी पसंद करता हूँ। मैंने उनसे कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज अब तक नहीं बन सकी। हिंदी को यह हक था कि उसको हम राष्ट्रभाषा कबूल करते, लेकिन साउथ वालों ने कबूल नहीं किया तो वैसी की वैसी लटकी हुई। इतना बड़ा मुल्क है, उसकी राष्ट्रभाषा हम बना नहीं सके। बालिज भर के मुल्क हैं, मैं देखा उनको, नेपाल को, बांग्लादेश को, और पाकिस्तान भी कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, वो भी एक, लेकिन उनकी राष्ट्रभाषा है। और हिंदुस्तान में तो कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है, जबकि हिंदी अगर होती तो हमें बड़ी खुशी होती, लेकिन लोगों ने उनको होने नहीं दिया। तो मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कहने लगे कि मौलाना क्या करें, साउथ वालों ने उसका विरोध किया तो हम मजबूर हो गए। मैंने कहा, एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते तो इतने मज़ाहिब का झगड़ा कैसे मोल लेंगे आप कि उनका पर्सनल लॉ सबका जो है कॉमन सिविल कोड में तब्दील कर देंगे। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि जैसा जिसका पर्सनल लॉ है वो उसके ऊपर वो अमल करे, इसी के अंदर खैरियत। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से मैं आपके पर्सनल लॉ के बारे में ये बात करता हूँ कि आपका जो शख्सी कानून है शरीयत इस्लामी का, उस पर आपको चलना चाहिए। मसलन ताहरत है, पाकीज़गी है, यानी इस्लाह माशरा की जो मैंने बात की थी उसमें ये चीज़ें आपके सामने आएगी कि हम अपने शख्सी कानून के अंदर जो चीज़ें अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमको बताई, मतलब बदन को पाक रखना, नापाक नहीं रखना, स्वच्छता और पवित्रता के अंदर फ़र्क है, सफाई में और पाकीज़गी में फ़र्क है। जैसे पेशाब से सने हुए कपड़े से इस फर्श को आप घस दीजिए, साफ हो जाएगा,
पाक नहीं होगा। पाक होने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे पानी से उसको धोया जाए। एक आलिम ने खूब कहा कि आईने के ऊपर, आरिसे के ऊपर, मिरर के ऊपर गर्द लगी हुई है तो उसको कोई गंदे कपड़े से साफ कर दिया, साफ हो जाएगा, वो पाक नहीं हुआ। पवित्र होने के लिए उसका साफ करना जरूरी है। इसलिए मुस्लिम समाज को पवित्रता के अंदर उसका यकीन होता है। उन्होंने सब नर नारियों ने, आदमी औरतों ने, सब ने इस बात का इंतजाम करना चाहिए कि हम बदन को पाक रखेंगे। और वजू का जो इंतजाम है, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए वजू का बनाना जरूरी है, ये भी पवित्रता का एक बहुत बड़ा जुज है। इसी तरह शादी ब्याह के अंदर किस लड़की को हम अपनी बहू बीवी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, शरीयत ने उसकी लिस्ट दे दी है। इससे आप आगे बढ़ नहीं सकते उसको। इसी तरह लड़कियों को खरीदना बेचना भी मना किया गया। ये पर्सनल लॉ है कि किसी कीमत के ऊपर औरत को बेचा नहीं जाएगा, किसी कीमत के ऊपर औरत के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अंतराजी मिनकुम कि निकाह के अंदर उस पर जबर नहीं होगा। वो अगर कोई कार्रवाई अपने बारे में करती हैं, विधवा के निकाह के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, वनकुल अयामा मिनकुम वस्सालिमीन मिन इबादिकुम, तुम्हारे नौकर चाकर जो हैं उनका भी विवाह करा देने के अंदर तुम पहल करो। इसलिए कि माशरे के अंदर बगैर विवाह के छड़ा जीवन गुजारना जो है वो कई बुराइयों की जड़ बुनियाद बन सकता है और बना है। यूरोप ने उसको देख लिया। हमारी जो विवाह पद्धति है उसके अंदर हम बिगाड़ को ना आने दें, ये हमारा पर्सनल लॉ है। कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा हराम है, कौन सा गोश्त हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ये हर एक का अपना पर्सनल लॉ है। मसलन मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो ये कि किसी जानवर को वो उस वक्त तक नहीं खा सकते जब तक वो हलाल की लिस्ट में न हो। किसी जानवर को उस वक्त तक नहीं खा सकते जब ज़िबा करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। क़िबला रुख लुटा करके वज़ू करके किसी ने उसको, किसी ईमान वाले ने उसको ज़िबा किया, पूरा खून जो है उसके बदन से निकल गया, जब वो उस गोश्त का इस्तेमाल कर सकता है। और भी बहुत सारी पाबंदियां हैं। जानवर चोरी का ना हो, जानवर चोरी का ना हो, जानवर हराम की लिस्ट का ना हो, जानवर मरा हुआ ना हो, मरे हुए को नहीं खा सकते। गैर अल्लाह के आस्थाने के ऊपर ज़िबा किए हो जैसे मिन्नतों के जानवर और इस तरह के लोग काटते हैं, उसको मुसलमान कभी खाएगा नहीं। अच्छा, दूसरे हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं कि सुअर, कुत्ता, बिल्ली, छिपकल, छछूंदर, सांप, कौवा, कबूतर एक लाइन से सब खा जाते हैं। हलाल भी खा लेते हैं और हराम भी खा लेते हैं और कोई उनके यहाँ पाबंदी नहीं, तो हम उन पर भी कोई जोर लगाते नहीं। लेकिन अपने खाने की चीज़ जो है वो वही हम खाएंगे जिसमें हमारे पर्सनल लॉ ने हमको इजाज़त दी है। वैसे ही लिबास भी हम वही पहन सकते हैं जो सातिर हो, यानी काबिल शर्म हिस्सों को छुपाने वाला हो। औरत जो है वो रेशम और सोना पहन सकती है, मर्द को मना किया गया। जिस्म के जो हिस्से जितने ढांकने ज़रूरी हैं उतना ढांकना मर्द के लिए भी ज़रूरी है और उसके लिए भी ज़रूरी है। ये मैंने छोटी छोटी बातें इसलिए, और मसलन खाना खाना है, उठाया, हाथ डाला और खाना शुरू किया, नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कोई अल्लाह का नाम लेकर के उसको सीधे हाथ से खाएगा, हाथ धो करके खाएगा, झटक लेगा हाथ को, उस वक्त तो टावल से पोंछेगा भी नहीं, इसलिए कि वो टावल के अंदर अगर दूसरे कुछ कीड़े जरासीम होंगे तो ख़राब हो जाएगा उसका हाथ। जैसे अक्सर डॉक्टर लोग भी करते हैं, हाथ धो के उसको झटक देते हैं और बाद में अपना काम, ऑपरेशन वगैरह का शुरू करते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, खाना खा लेगा, हाथ धो लेगा, उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन व अश्ताता, तुम पर कोई गुनाह नहीं मिल करके खाओ या अलग अलग खाओ। बहुत सी कौमें मिलकर खाती हैं, अलग अलग खाती हैं। इस्लाम ने दोनों की इजाज़त दी है। मिलकर खाते हैं तो भी ठीक है, और किसी का जी नहीं होता, मसलन बहुत से लोग आधा मुंह हाथ में डाल लेते हैं खाने के लिए बैठे, अब एक ही थाली में आपके साथ खा रहा है तो आपको कह हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, आपको घिन आने लगेगी। उसने कहा नहीं, इसकी इजाज़त है, तुम चाहो तो अलग भी खा सकते हो, चाहो तो तुम साथ में भी खा। तो पर्सनल लॉ के बारे में ये कहना चाहता था कि पर्सनल लॉ किसको कहते हैं? पर्सनल लॉ उसको कहते हैं कि जिनके अपने अपने उनके शख्सी कानून हैं। मिसाल के तौर पर दलाई लामा हमारे दोस्तों में से और बुद्ध मज़हब के आलमी सतह के बहुत बड़े रहनुमा, मेरी उनसे कई मरतबा मुलाकातें हुई और हमने एक स्टेज पर तकरीरें भी की है। उनका अपना एक पर्सनल लॉ है, उसमें तब्दीली करने का किसी मुस्लिम हुकूमत को भी हम हक नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। उनसे यही कहेंगे, मुसलमानों की भी हुकूमत है, उनसे कहेंगे नहीं, बुद्ध फिलॉसफी का जो पर्सनल लॉ है या हमारे हिंदू भाइयों का जो पर्सनल लॉ है उसमें भी हम मुदाखलत नहीं करें। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर ऐसा वातावरण बने कि हर आदमी अपने अपने मजहब के ऊपर अमल करे, कोई किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी, कटाक्ष या तुलनात्मक विवेचन जिसको संस्कृत में कहते हैं, ये मैं आम बात कहते रहता हूँ इसलिए मेरी ज़बान पर ये लफ्ज़ आते हैं कि फजूल के बहस मुबाहिसे के बदले हम वातावरण ऐसा बनाएं कि जिसमें
एक दूसरे का ताउन और मदद कर सकते हो तो उसमें हम साथ साथ चलें, और जहां हमको ऐसा लगे कि इसमें तो इसके साथ चल नहीं सकेंगे तो अल्लाह की अदालत लगने तक हम उसको मुलतवी कर दें, और कुछ काम दुनिया छोड़ने के बाद में अपने मालिक के दरबार में जब खड़ा होना है उस पर भी रख लें। अरबी का एक मशहूर मकूला है कि किसी तरह भी फैसला नहीं हो रहा दो आदमियों के बीच में, अच्छा उन्होंने कहा कि बैन का बैनी यौमल क़यामा, मेरे बीच में अब क़यामत के दिन फैसला होगा, जा तेरे को जैसा करना कर दे मत दे, अब मैंने अपना हक छोड़ दिया। हम ये कहते हैं कि समाज रचना के अंदर, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर दूसरों ने गौर करना चाहिए। जब उसको हम देखेंगे, दूसरी कौमें भी देखेंगी, तो उसके लिए मुसलमानों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि शादी ब्याह के अंदर मुसलमानों के कानून के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हम कर रहे हैं, मसलन तलाक़ को ले लीजिए कि तलाक़ जो है, तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन और तसरीहुम बेहसान, तलाक़ 2 मरतबा की इजाज़त है मर्द को, तीसरी मरतबा जो तलाक़ दी तो अब उसको वापस नहीं लेगा, 3 तलाक़ के बाद में औरत उसके ऊपर हराम हो गई। अब इसका हक उसको मिला हुआ है। मसलन कोई औरत टेढ़ी है और बार बार झगड़ा करती है, माँ से झगड़ा करती है, घर में सास ससुर से, पड़ोसियों से ज़्यादा खर्च करती है, या कोई आज़ादी पसंद है, या कोई ऐसी चीज़ करती है जिसमें मर्द उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको उसने हक दिया है, पर्सनल लॉ है, वो अपनी औरत को छोड़ सकता है। लेकिन छोड़ने में जो तरीक़ा मुसलमान अख्तियार किए हुए वो पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा ना करे किसी को अपनी बीवी को तलाक देने की नौबत आ ही जावे तो आलिम से पूछ ले कि मौलाना इसका सही तरीका क्या है। तलाक 3 दे देते हैं इकट्ठी एक मजलिस के अंदर, और फिर दूसरे दिन मौलाना के घर के चक्कर मारते हैं, और मौलाना बेचारा मजबूर है कि भाई 3 इकट्ठी दे दी तो अब तो इस औरत को नहीं रख सकेगा। तो इतना भयानक मसला घर के अंदर बच्चों का और उनका हो जाता है कि ख़ानदान जो है उसमें एक तरह का टारपीडो हो गया है, एक तरह का ब्लास्टिंग हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ उलमा से बगैर पूछे तलाक नहीं देना चाहिए। अल्लाह का फजल है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जगह जगह दारुल क़ज़ा कायम कर दी है, उन मदरसों में, बड़े मदरसों में, खुद हमारे यहाँ आपके बम्बई में भी है और मालेगांव में भी है, तो वह एप्लीकेशन करके हम उसको देखें कि किस तरह इस मसले को निपटाया जाए। वैसे ही औरतों को के बारे में ये कहा जाता है कि औरतों को तलाक देने का क्यों हक नहीं है। हमने कहा कि इस बेवकूफ़ ने कह दिया कि नहीं है, उसके अंदर उसको खुला का हक है, नहीं अबला नारी है, इसलिए मुस्लिम समाज के जिम्मे है कि वो उसकी मदद करे। और कोई औरत अगर अपने पति से तंग है, मतलब मारपीट करता है, खाना खर्चा नहीं देता है, और कोई ऐसा जुल्म करता है, शराब पीता है या कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो उलमा को एप्लीकेशन दे करके अपना निकाह फस्ख करा सकती है, जिसको खुला कहते हैं। तो ये एतराज़ करना मुस्लिम पर्सनल के ऊपर सही नहीं है कि भाई मर्द को तो हक दे दिया उसने कि वो तलाक दे दे वो, और औरत को उसने हक क्यों नहीं दिया, ये बात सही नहीं है। बल्कि औरत भी अगर खुदा ना करे ऐसी सूरत हो और अपने मर्द से छूटना चाहती हो तो उसको आज़ादी दे रखी है कि खुला का एप्लीकेशन करें, उसकी जांच पड़ताल काजी करेगा, देखेगा, बने वहाँ तक जोड़ने की कोशिश करेगा, और जहाँ दिखेगा कि अब इनका जोड़ नहीं बैठ सकता तो उसके छूटने के रास्ते भी हैं। इसी तरह औरतों को जो समाजी हुकूक के अंदर उनको विरासत का हक मिला हुआ है, मुसलमानों ने उसको पूरा देना चाहिए। वो देने से हिंदुस्तान के अंदर दूसरे घटक जो हैं और दूसरे जो यूनिट्स हैं उनके अंदर भी ख्याल पैदा होगा कि इनके यहाँ औरतों को इतना हिस्सा मिलता है और हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग उठ कर के खड़े हो जाएंगे कि आपके पर्सनल लॉ की नकल के लिए वो अपने यहाँ भी हलचल जारी कर सकते हैं। इस मजलिस के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ तो कुरान मजीद का माना के साथ पढ़ना है। मसलन अब एक आयत ही जाते जाते सुना देता हूँ कि जिस पर आपका अमल नहीं है। मसलन फरमाया कि वशहिदू ज़वे अदल मिनकुम, तलाक देने का जब मौका है तो तुम में से 2 साहिब अदल आदमियों को, मुंसिफ आदमियों को गवाह बना लो। मुझे आप बताइए हिंदुस्तान में कहीं भी किसी ने इस पर अमल किया हो? रात के 2 बजे झगड़ा हुआ और उसने उठा के धड़ के साथ 3 तलाक दे दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे 1 तलाक दे करके 3 महीने का जो मुद्दत है उस तक इंतजार करना चाहिए कि जुड़ सकता है तो जोड़ रखा जाए, और नहीं तो फिर छूटने के रास्ते खुले हुए हैं। तो तीनों तलाक़ें अपने पीरियड के अंदर दी जाएं तो उसमें मर्द को भी सोचने का मौका मिलता है, औरत को भी सोचने का मौका मिलता है कि हम साथ में रह सकते हैं नहीं रह सकते। उजलत में ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए। जैसे 2 बजे रात को झगड़ा हुआ और अपनी बीवी को तलाक दे और उसको ही मालूम हो कि तलाक के ऊपर 2 गवाह जरूरी हैं, और गवाह जो है वो ये नहीं कि किसी को भी उठा के पगले को, शराबी को, कबाबी को ले आया घर में, बल्कि कोई मौलाना है, कोई आलिम है, कोई काजी साहब हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई पटेल साहब हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, उनको फ़ोन करेंगे तो वो तो बोलेगा ना बाबा इस वक्त क्या मौत आई है, सुबह 10 बजे आएंगे हम, ठंडी है, गाड़ी भी नहीं है। 10 बजे उसका इरादा बदल जाएगा। इसलिए कि तलाक जो है एक तरह की खुदकशी है, आत्महत्या है।
आत्महत्या अगर मशवरा कोई करे तो कर नहीं सकेगा, बगैर मशवरे के छलांग लगा दी। इसलिए मुसलमानों से ख़ास तौर पर हम अपील करते हैं कि तलाक के अंदर संयम बरतें वो, और हालात को देखें उसको, और उसके लिए कुरान मजीद ने जो हमारे पर्सनल लॉ के अंदर हमको हुक्म दिया है कि फ़ैज़ूहुन्ना, औरतों को नसीहत करो पहले, वाजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह, कुछ देर फिर अलग रह करके देखो कि मतलब कोई लड़ाका औरत है, बहनें नाराज़ ना हो इससे, बाद बहनें ऐसी लड़ाका होती हैं कि काबू में नहीं आती, फिर अब वो बेचारा घबरा गया तो क्या करेगा, वो सीधा आदमी हो, और हो सकता है कि ये इसका भी कसूर हो। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर ये भी नहीं होता वो भी नहीं होता, तो फरमाया कि फबसु हकम मिन अहलिही हकम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाही युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। एक पंच लवात भी जिसको कहते हैं, औरत के खानदान की तरफ से, एक मर्द के खानदान की तरफ से, उनको बोलो सर जोड़ करके बैठो और ये डिस्प्यूट जो घरेलू हो गया है इसको दूर करने की कोशिश करो और निकाह के बंधन को टूटने मत दो। अगर इरादा इस्लाह का होगा तो अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। अगर ये भी नहीं बनता है और तलाक की नौबत आती भी है, खुदा ना करे, तो एक तलाक दे और उसमें 2 गवाह हो, उसमें भी उस गवाह का मुसलमान होना ज़रूरी है। जबकि खुद कुरान मजीद डॉक्यूमेंट में, रजिस्ट्री के अंदर, वसीयत के अंदर इस बात की खुली इजाज़त देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि वसाबतकुम मुसीबतुल मौत हिनल वसीयत इस्नान ज़वा अदलिम मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम। सफ़र में चल रहे हो, मौत का वक्त आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी सूरत हुई, कोई माल की वसीयत करना चाहते हो अपने बाल बच्चे के लिए, तो 2 ईमान वालों को ढूंढो और उनको गवाह कर लो, और अगर न मिले तो गैर कौम का भी गवाह उसमें चलेगा। माँ बाप की खिदमत करना, उनके हुकूक की अदायगी करना, ये दीन के अंदर एक बुनियादी चीज़ है। आज माशरा हमारा इस तरह का समाज बन गया है कि पर्सनल लॉ ये है, इनको मालूम ही नहीं। बाप का हक जो कुरान मजीद के अंदर बताया गया और माँ का जो हक बताया गया है, उसकी अगर लिस्ट बनाना चाहेंगे तो आप इस नतीजे को पहुँचेंगे कि नमाज, रोज़े और हज व ज़कात के साथ में इसकी भी बड़ी अहमियत है कि अपने माँ बाप के साथ में हमारा तरीक़ा अच्छा हो। इसी तरीके से लड़कियाँ जो ब्याह देते हैं, उनमें बाज़ इलाकों के अंदर ऐसा रिवाज है कि आज शादी हुई लड़की की, 2 दिन के बाद में मैके वाले जाके फिर बच्ची को अपने घर ले आए, फिर वो लेके गए, फिर ये घनचक्कर की तरह बच्ची इधर से उधर आती। बच्ची ब्याही गई तो मैं नसीहत करता हूँ, महीने 2 महीने 4 महीने उसको लाना नहीं चाहिए, इसलिए कि सास ससुर देवर और ननदें कैसी है, उनका मिजाज क्या है, उसको समझने में उसको सहायता मिलेगी। 4-6 महीने रही, अब 2 दिन कहीं रख करके आ गए आपको, तो कोई मिजाज की तब्दीली और कोई प्रोग्राम नहीं बना सकेगी। बहुत से निकाह जो फेल होते हैं, बच्चियों को अब अपनी पर्सनल लॉ के तहत ये उनको नसीहत करो कि इधर की बात मैके में नहीं करें और मैके की बात जो है वो ससुराल के अंदर नहीं करें। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ करने से चुगली चाड़ी का माहौल बनता है और ख़ानदान के अंदर बिगाड़ आता है। ये चीज़ मालूम है क्या? मुसलमान इसको देखते हैं क्या? डोल धमाके कर लेंगे आप, ये शरीयत नहीं है। बिदत का नाम शरीयत नहीं है। शरीयत जो है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों और साहबा ख़वातीन ने और उम्महातुल मोमिनीन ने जो तरबियत की है वो आपको करना पड़ेगा, जिससे आपका माशरा और आपका ख़ानदान एक मिसाली होगा, सिंबल होगा, नमूने के लायक होगा। दूसरे देखें तो उनका जी चाहे कि ईमान वालों का समाज देखने के काबिल है। और आप इस पर नज़र डालिए ना कि आपका खाना पीना, आपका लिबास, आपका इंशाअल्लाह कहना और आपकी बहुत सारी तहजीब और तमद्दुन की जो चीज़ें हैं जब इस मुल्क में आम हुई तो क्या लोगों ने नफरत की? क्या आज बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास में किसी सड़क पर आप खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए, लाखों आदमी इधर से उधर जाते हैं। उसमें ज़रा निगाह डालिए भला, औरतों और मर्दों के लिबास के ऊपर सारा मुस्लिम माशरे का लिबास आ गया। इसके लिए आपने कोई तबलीग की? आपने कोई हिजदशन किया कि हमारा लिबास बहुत अच्छा है, इसको अख्तियार करो? जो चीज़ें अख्तियार करने की थी वो माशरे वालों ने की। एक ज़माना वो था कि जनाजे को लोग कांधा नहीं लगा सकते थे, लेकिन तुम्हारा जनाजा जब गलियों और सड़कों में दिखने लगा उनको कि तो हज़ारों की तादाद में मैयत को कांधा लगाते हैं, तो दूसरे लोगों ने भी कांधा लगाना शुरू किया। अच्छे अमल का जो आपकी शरीयत का और आपके पर्सनल लॉ का अमल है उसका मुजाहरा करने लगे हम। उसी तरीके से नमाज के बारे में कहता हूँ कि धींगा मुश्ती नहीं करनी चाहिए। बसों में, बस अड्डों में, ट्रेनों में कहीं नमाज पढ़ना हो तो मुसाफिरों को तकलीफ ना हो, हटो बचो हम नमाज पढ़ने नहीं, ज़रा सी जगह दे दीजिए लाला जी थोड़ी देर के लिए हम नमाज पढ़ें, तो बहुत मोहब्बत से वो आपको जगह भी देगा। माशरा जो है क़ूलू लिन्नास है हुस्ना, के लोगों से अच्छी बात कहो। लड़ाई झगड़ा, खींच तान, टर्रेबाजी, ताना कशी बिल्कुल न हो। मुसलमान की ज़बान के अंदर नरमी हो। और इसके लिए पर्सनल लॉ के एतबार से मैं साहब के कहता हूँ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ जिससे बेहतर कानून ज़िंदगी नहीं हो सकता, लोगों को बुलाओ और कभी बहस का मौका हो तो उसमें खूबसूरती से बहस करें।
تو میں لڑائی جھگڑا اور کرکش بنا اور سختی اور ٹرے بازی سے لوگوں کے دلوں کو توڑنے کے بجائے ہم جوڑنے کی کوشش کریں. انہیں معلوم ہو کہ صاحب کتاب امت ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, قرآن